हेलो बच्चों, एक बार फिर से अजय तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। Sacred groves. What is sacred groves? So, the forest conserved in nature, conserved in the name of God and considered to be sacred is called sacred groves. ठीक ना? तो ऐसी चीज जो ईश्वर के नाम से, ऐसा जंगल जो ईश्वर के नाम से सुरक्षित रखा जाता है, उसको sacred groves कहते हैं। इन हिंदी और मराठी इट इज कॉल्ड वन राई। इट इज कॉल्ड वन राय, देवों के नाम से, ईश्वर के नाम से सुरक्षित जमीन। दीज आर इन फैक्ट सेंचुरीज, ये सेंचुरीज ही होते हैं, कंजर्व बाय द सोसाइटी, नॉट बाय द गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। सो द सैक्रेड ग्रुप्स आर also as part of sanctuaries that are maintained by the social group people, armed people, not by the government forest department. These cluster of thick forests are present now in not only in western Ghat of India but in the entire country. ये जो देवराई हैं, ये जो sacred groves हैं, ये न तो सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में है बल्कि ऑल ओवर इंडिया में है। ठीक है, more than 13,000 sacred groves have been reported in India. Where are such sacred groups in Maharashtra? महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ है? This is your responsibility. Go through the Google and find out where these sacred groups situated in Maharashtra. How can biodiversity be conserved? Biodiversity को हम कैसे conserve कर सकते हैं? तो there are 7 ways. Protecting the rare species of organism, establishing national park and sanctuaries, declaring some region as biodiverse, projects for conservation of special species, बहुत सारे स्पेशल स्पीसीज के लिए, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट हमारे इंडिया में रहता है, ठीक ना, टाइगर को बचाने वाला, राइनो प्रोजेक्ट है, गैंडे को बचाने वाला प्रोजेक्ट है। कंजर्वेशन ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑब्जर्विंग द रूल्स, मेंटेनिंग record of traditional knowledge. So these are the ways by which we can conserve the biodiversity. These are some symbols that we use in our day-to-day life. What are these symbols? This is given in your book, so we explain here. This is use dustbin always, because by using dustbin we can clean our environment. And the symbols tells us to save electricity. By saving electricity we can save nature. The symbol of bicycle says that we must save fuel. To save fuel, save nature. The symbol, by seeing, you can see here, symbol tells us to save water. By saving water, we can save nature. The symbol tells us about reuse, reduce, and recycle the natural resources. So if we have conserved natural things, so we must reuse, recycle, and reduce use of the natural resources, save water. And the symbol tells us to use solar energy to save jungles. So use green energy, solar energy. List of voluntary organization and international organization. Here are some list is given of some organization, Indian organization and international organization, that look through the environmental problem. And in all these, the Greenpeace is world's largest organization. This Greenpeace is spread in 26 different countries, and there are 25 lakhs people who directly on and indirectly attached with this Greenpeace. And these Greenpeace, they are working for saving our nature. So by reading these all things, we can uh, say to which organization is going to help to maintain our environment. So first one is Bombay Natural History Society, CRP Environmental Group Chennai, Gandhi Peace Foundation Delhi, Chipko Center Terry Garhwal, Center for Environment Education Ahmedabad, Kerala Science Literature Council Trivandrum, Indian Agro Industries Foundation Pune, Vikram Sarabhai Community Science Center Ahmedabad. For international organization, International Union for Conservation of Nature, Gland, Switzerland,
Intergovernmental Panel of Climate Change, Geneva, United Nations Environmental Program, Geneva, World Wildlife Fund, New York, BirdLife International, Cambridge, Greenpeace क्लाइमेट फंड, सोंगडो, साउथ कोरिया। तो ये सब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ नेशनल है कुछ इंटरनेशनल है, जो कि पर्यावरण को बचा के रखने में अपना बहुत सारा हेल्प कर रही हैं। सो एनवायरनमेंट के रोल में, मेरा एनवायरनमेंट में क्या रोल हो सकता है? हम उसको कंजर्व करने में हमारा रोल हो सकता है, ठीक है ना, कंट्रोल करने में हमारा रोल हो सकता है, बाय प्रिवेंटिंग द हार्मफुल एक्टिविटीज, चेंजिंग माइंडसेट, प्रोडक्शन में रिवाइवल ऑफ हार्म फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट, अटेम्प्टिंग इनोवेशन। हम अवेयरनेस फैला सकते हैं बाय एजुकेशन, गाइडेंस, अवेयरनेस प्रोग्राम, इमिटेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, पार्टिसिपेशन करके। प्रिवेंशन कर सकते हैं बाय प्रिवेंटिंग पॉसिबल हार्म्स, डिजाइनिंग न्यू प्लान्स, फैक्टर हार्मफुल टू एनवायरनमेंट, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन, हम कुछ चीजों को प्रिजर्व भी कर सकते हैं, प्रिजर्विंग वॉट एवर हैव बीन लेफ्ट ओवर, जो बचा हुआ है अपने पास अर्थ पे, उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। रेमेडीज टू प्रिवेंट फर्दर लॉस, प्रिजर्विंग नॉलेज ऑफ रीजन। सो हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? So there are 34 sensitive biodiversity hotspot all over the world. पूरी दुनिया में 34 ऐसे biodiversity hotspot हैं, और once these area occupied about 15% area of the earth. एक समय ऐसा था जब ये हॉटस्पॉट 15.7% एरिया को कवर करते थे, बट एट प्रेजेंट ओनली 2.3% एरिया ऑफ दीज हैड बीन लेफ्ट ओवर। लेकिन इस 15.7 से अभी ये हॉटस्पॉट का एरिया सिर्फ 2.3% रह गया है, और बाकी जो पार्ट है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इट इंक्लूड्स 1,50,000 प्लांट स्पीसीज विच आर 50% ऑफ वर्ल्ड काउंट। जो हॉटस्पॉट्स हैं उनमें से 1,50,000 1,50,000 स्पीसीज हैं हॉटस्पॉट में, जो कि पूरे दुनिया के प्लांट्स का 50% है। As for India, consider out of 135 species of animal and 85 species are found in jungle of eastern region. तो 135 जो species of animal हैं, उनमें से 85 species जो है ईस्टर्न, पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। About 1,500 endemic plant species are found in Western Ghat. Out of total plant species in entire world, 50,000 are endemic. 50,000 जो प्लांट स्पीसीज हैं उनमें से जितने भी स्पीसीज हैं उसमें से 50,000 एंडेमिक हैं, यानी नष्ट होने के नियर पे हैं। तो जो थ्रेटेंड जो स्पीसीज है उनका क्लासिफिकेशन अगर हम करें, कौन कौन से खतरे में है अभी स्पीसीज, तो इनको 4 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला, एंडेंजर्ड स्पीसीज, either number of these organisms is declined or their habitat is shrunk to such extent that they can be extinct in near future if conservative measures not implemented. तो ये ऐसे हैं कि ये इनकी संख्या बहुत तेजी से घट रही है, या इनके रहने की जगह इतनी तेजी से घट रही है कि अगर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में ये पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। जैसे लायन टेल्ड मंकी है, ये लायन टेल्ड मंकी है, और ये लेसर फ्लोरिकन है, ये छोटी सी चिड़िया है, घासों में रहती है। रेयर स्पीसीज, नंबर ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज कंसिडरेबली डिक्लाइन, ये बहुत तेजी से घट रहे हैं। ऑर्गेनिज्म ऑफ दीज स्पीसीज बीइंग एंडेमिक मेनी बिकम एक्सटिंक्ट वेरी फास्ट, और ये बहुत तेजी से एंडेमिक हो रहे हैं, कुछ तो नष्ट होने के बिल्कुल कगार पे पहुंच चुके हैं। जैसे रेड पांडा, ये देखिए रेड पांडा है, और मस्क डियर, ये कस्तूरी मृग है, इसके पेट में कस्तूरी पाया जाता है जिसके लिए ह्यूमन इसको किल करता है। वल्नरेबल स्पीसीज, एकदम खतरे में जो है वो, नंबर ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज एक्सट्रीमली लेस, बहुत कम है, एंड कंटिन्यूअस टू डिक्लाइन इन देयर नंबर्स वरी सम रीजन, कुछ चिंताजनक कारणों के कारण इनकी जो संख्या वो बहुत तेजी से कम हो रही है, जैसे टाइगर, लायन। इंटरमिनेट स्पीसीज, कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो इतने शर्मीले हैं, जो इतने शाई हैं कि जिसके कारण इनको पहचान पाना कि एंडेंजर्ड में है कि ये रेयर में है, क्या है पता नहीं चल पाता। दीज ऑर्गेनिज्म अपीयर्स टू बी एंडेंजर्ड बट ड्यू टू देयर सम बिहेवियरल हैबिट्स
देयर इज नो डेफिनेट सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे कि जायंट स्क्वायरल जिसको कि शेखरू बोलते हैं, ये बहुत ही शाई नेचर के होते हैं। कुछ यहाँ पे स्लोगन्स हैं, वी ऑलवेज हैव टू रिमेंबर। डिस्ट्रॉइंग अ प्लांट इज डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग। प्रैक्टिस अफॉरेस्टेशन टू कंजर्व एनवायरमेंट। Forest is wealth. Environmental protection is value education. Provident use of paper is prevention of deforestation. To practice the environment protection is to development of human society. Pure air, pure water is key to healthy life. ठीक है ना, ये कुछ स्लोगन्स हैं। और एक स्पेशल डे मनाया जाता है 22 मई को, वर्ल्ड बायो डाइवर्सिटी डे के रूप में मनाया जाता है। तो आप इसके लिए एक सर्वे कर सकते हैं कि आपके लिए आपके आजू बाजू में कितने प्लांट्स हैं, कौन कौन से एनिमल हैं, कौन से रेयर हैं, कौन से नष्ट हो रहे हैं, ये सब के बारे में आप प्रोजेक्ट आसानी से बना सकते हैं। सो